हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाले गेम में कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ है जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहूंगा। वैसे टाइटल से तो तुम्हें पता ही चल गया होगा क्या बढ़िया हुआ है गेम में। तो आज से इस गेम में मेरी रेटिंग है 1356। रैपिड गेम है ये। 1356 मेरी रेटिंग है इसमें और मेरा अपोनेंट की रेटिंग थी 1383। तो मेरा अपोनेंट मेरे से थोड़ा सा ज्यादा रेटेड था। तो लेट्स गेट इनटू द गेम। आई वाज प्लेइंग विद द व्हाइट पीसेस, तो तुम्हें पता ही है मैं हमेशा व्हाइट से क्या खेलता हूँ। I played the English opening, which is one c4. My opponent started off with e5, which is the reverse Sicilian variation, and I started off with the main theory, which is knight p3, and my opponent started off with knight f6, and then I played the most played move here, which is g3, which is the dragon variation of the English opening. This is the reverse dragon variation. If my opponent played this, and he played that, and I played bishop g2. This is the reverse dragon variation, which is not good for white because after I put my bishop here, because he gets a little advantage because he can just kick out my knight. Now I have two options here, either to go here or here. Going here would be more beneficial for me because if he takes, I can just go back here. That's good for me. But I got there and I gave him another tempo. And after that, my bring out my knight. You can see that he has a plus. Black has a plus in the position because he has a quick advantage of development. And I have no advantage. He brings out the bishop. I put the bishop back and I castle. And here he brings out his bishop to an undefended square. I see that this bishop is undefended. So I thought of attacking it, but I have no way. It would take at least 2 moves to attack this bishop. So I played queen d3 in this position. This is not a very bad move. It was like a future development move. मतलब क्या था ना, इसमें कुछ टैक्टिक मैं सोच रहा था वो करने की जो फ्यूचर में मेरे वर्क आती। फिर उसको दिख रहा था कि मैंने यहाँ पे इसके फोन अटैक करा है, तो मैं सोच रहा था कि या तो ये उस फोन को पुश करेगा तो ये वाला फोन वीक हो जाएगा उसका, और या फिर मुझे पता किसी फोन पीस से प्रोटेक्ट करेगा जो कि है क्वीन, वो खाली यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर अपने क्वीन यहाँ लेके जाता तो मेरे पास एक टैक्टिक थी पोजिशन में जो मैंने खेली थी, और मेरा अपोनेंट ने यही करा। ही प्लेड क्वीन e7। जो तुम देख रहे हो कि इवैल्यूएशन बार थोड़ा सा ऊपर गया क्योंकि इस पोजीशन में हमारे पास एक टैक्टिक है। मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, क्या तुम्हें वो टैक्टिक दिख रहा है? सो द टैक्टिक हियर इज knight takes e5. You see, I sacrifice my knight in this position because if he takes my knight, this pawn is now undefended and I can chop this one off and there's no way to protect this rook. See, so he was a clever player, so he didn't take my knight and I just bring my knight back to 50 because now I don't have this tactic left because the king is now castle and after the knight move the rook will be protected. तो मैं अपनी नाइट को वापस लाया। फिर उसने मेरा, अरे अपना तुम लोग बताना मुझे, सॉरी, इस वाले पोजीशन में मेरा मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं नाइट हटाऊंगा तो यार मेरा ये वाला पॉन अनडिफेंडेड हो जाएगा, लेकिन वो पॉन एक पॉइजन पॉन है। पॉइजन पॉन इन चेस मतलब अगर वो तुम्हारा अपोनेंट उस वाले पॉन को अटैक या फिर उस पॉन को कैप्चर करता है तो वो इमीडिएटली हारने वाली पोजीशन में चला था। मेरा अपोनेंट ने यही करा, वो मेरे ट्रैप में आके फंस गया और उसने वाला पॉन टेक कर लिया। अब तो एवोल्यूशन बार देख के समझ गए +3 फॉर व्हाइट हो चुका है। तो इस पोजीशन में एक ऐसा मूव है जिससे मेरा अपोनेंट क्वीन ट्रैप हो सकती है। मूव क्या तुम लोगों को दिखा? द मूव इज rook e1. The queen has no legal queen cannot go here, not here, not here, not here, not here, not here, not here, and he cannot take capture this one. Or can, if he captures the knight, plan on capturing the knight, he can just take back. And I'm just winning the queen in this position, guys. So this was winning for white. He played the, I guess, the best move in the position with this to create a pawn here and try to just accumulate things. So I just captured the pawn because I have to calculate here first because if I take, I can actually stop. Can I actually stop this pawn? I was thinking after this he would put his rook here and support this pawn, but things didn't go well for him. मैंने क्वीन कैप्चर करी, तब कैलकुलेट करने के बाद मैंने कौन से कैप्चर बैक करा, फिर मैंने नाइट बीच में ले आया, फिर उसके साथ नाइट रहा। अब तुम लोगों को दिख रहा है वही टैक्टिक अब काम कर सकती है, लेकिन मैं काम अब नहीं कर सकती, लेकिन ये वाला पॉन अब अनडिफेंडेड है तो मैं वाले पॉन को मार सकता हूँ। दिस इज साइमल्टेनियसली अटैकिंग द नाइट ऑल्सो। तो अपने को नाइट हटाता है तो अब उसने अपने ये वाला पॉन भी डिफेंड कर दिया, और अब मुझे लगता था कि वो अपने ये वाला नाइट यहाँ पे लाके चेक मारेगा क्योंकि मेरा नाइट यहाँ से हटाना प्रमोट करने की, लेकिन मैं यहाँ पर तो बिशप से मार सकता हूँ। तो उसे शायद मेरे ख्याल से पहले अपना बिशप लाना चाहिए था, यहाँ पे उसने गलती कर दी। हाँ, उसने गलती कर दी, इसे यहाँ पे बिशप भी खेलना चाहिए। अच्छा मेरी मदद करो।
मेरे मूव के बाद इस पोजीशन में फिर मैंने अपना पॉन पुश करा, बिकॉज मुझे अपना बिशप चेंज करना था, अपना रुक को इस फाइल को ओपन करना था, क्योंकि पॉन एक बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा था। उसने पता नहीं अपना नाइट ब्लेंडर बैक कर दिया यहाँ पे, पता नहीं क्यों, क्योंकि नाइट यहाँ पे आने को फायदा तो लग नहीं रहा मुझे, बिकॉज आई मुझे चॉप इट ऑफ, लेकिन इवेल्युएशन बार में ऊपर चला गया और अब बिशप भी अटैक है। लेकिन ये वाला नाइट बिशप को मार नहीं सकता, क्योंकि वाला पॉन प्रमोट कर जाएगा फिर, क्योंकि अभी मेरा रुक इसको नहीं ले रहा है। तो अब उसने एक जो सबसे समझदार हो सकता था एक पोजिशन में मूव खेला है, अटैकिंग माई नाइट। अब मुझे अपना नाइट को या तो मैं कैप्चर करूँ और वो प्रमोट कर देगा, तो मुझे अपना नाइट वापस लेके जाना पड़ा। मुझे अपना नाइट वापस लाया, फिर उसने अपना रुक पता नहीं वहाँ के लेके मुझे लग रहा था कि अपना रुक यहाँ पे डेवलप करेगा, तो मैंने अपना बिशप नहीं खेला। फिर पता नहीं इमीडिएटली मेरा फोन मिला। अब मैं देख रहा हूँ मेरा बिशप अटैक है, या तो मैं अपने बिशप को प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन मुझे जो रुक जो है ओवरलोड ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये वाला फोन मारा, विच इज आई मीन साइमल्टेनियसली अटैकिंग, बिकॉज आफ्टर ही टेक माय बिशप आई विल जस्ट टेक दिस बिशप एंड आई एम साइमल्टेनियसली अटैकिंग दिस बिशप ऑल्सो। तो अब तो एक टेम्पो मिल जाएगा मुझे, तो मैंने ये वाला मन सोचा और उसने अपना बिशप यहाँ हटा लिया। मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरा ये वाला नाइट मारना चाहिए पर मैं यहाँ से हटाने के लिए, बट मेरा रुक से डिफेंड कर रहा था, तो मैंने ये खेला। क्वीन हियर साइमल्टेनियसली अटैकिंग दो, अभी 4 होता, लेकिन ये जेन्युइनली 4 नहीं, क्योंकि मैं मटेरियल नहीं विन कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा बिशप मार सकता है पोजीशन, और फिर मैं इसका बिशप मारता पीछे इक्वल ट्रेड। तो ही ब्रेक मुझे इस मूव का भी समझ में नहीं आया, उसने अपना बिशप पीछे क्यों ले गया, उसने मतलब जरूरत भी नहीं थी उसकी, और मैंने ये वाला बिशप मार लिया। अब उसे मेरा बिशप मारना 4 से 1 वो डाउन मटेरियल हो जाए, वो तो वैसे भी है, सही बात है। फिर उसके बाद मैंने अपना बिशप यहाँ पे लाया, क्योंकि मुझे फोन को हटाना है, बहुत बड़ा थ्रेट है। अब इसको प्रोटेक्ट करने का कोई और तरीका बचा नहीं, क्योंकि उसने अपने रुक को खुद ही कट ऑफ कर रखा है। अब मुझे लग रहा था कि वो मेरी क्वीन को अटैक करेगा, लेकिन फिर मैं यहाँ आ जाता, फिर कोई उसके पास रिसोर्स बची नहीं थी, क्योंकि फिर अगर वही खेलता तो मैं अपना बिशप मार देता, तो मतलब उसका एंड ही हो चुका था। और उससे अपना रुक ओपन फाइल पर रखा, मैं समझ गया उसका प्लान क्या था, यहाँ पे वो अपना रुक को यहाँ जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ये पॉन चॉप ऑफ हो जाएगा। फिर पता नहीं उसने अपना रुक यहाँ पे शायद ब्लंडर कर दिया, उसे दिखा नहीं कि मेरी क्वीन भी है पीछे। उसने देख रहे हो लाइक 5 मिनट 56 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में ये मार दिया, मतलब उसने देखा नहीं मेरी क्वीन भी है पीछे, और उसने पोजीशन पे रिजाइन कर दिया, बिकॉज वो पॉइंट से डाउन था। तो दिस वाज द गेम गाइस। अब ये गेम बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत एक टैक्टिक बहुत अच्छी देखी, शायद वो टैक्टिक जो मैंने की थी नाइट टेक E4, वो शायद एक ब्रिलियंट मूव हो सकता था। तो अब मैं उसे चेक करूँ जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस, अगर वो ब्रिलियंट हुआ तो मैं तुम लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, तुम लोग प्लीज चेकआउट करना। And please like the video if you like it, and subscribe the channel to get notified about things. Thank you and bye bye.